Assalamu alaikum viewers, hope you are in a good health. Today we are going to discuss about the Microsoft Excel because there is a lot of need of calculations in every field of life. Either the person is a student, he should use the calculation in their assignments, in their projects and the classworks, right? And if he is a businessman, then he needs the calculations in their business projects, right? And if he is a teacher, then he needs to calculate the result sheets and attendance sheets, etc. So today we are going to focus on the Microsoft Excel, that is the tool for calculations of every type of calculations. Right now we are going to start the Microsoft Excel. First of all, go to the start button, right? Then all programs. In all programs, the option is Microsoft Office. Click on that and then Microsoft Excel, right? This one, Microsoft Excel. Here you found the Microsoft Excel on your computer, on your laptop, right? Then click on that. The Microsoft Excel is open. First of all, I am discussing about the main page of the Microsoft Excel, right? Microsoft Excel is also called the spreadsheet software. Basically, spreadsheet or the Microsoft Excel is a program used to enter, analyze and calculate the data for record keeping. Basically, this software is used for record keeping. Record everything like result sheets, attendance sheets, business sheets, profit and loss statement, monthly expenditure, etc. It stores and presents the data in rows and columns, right? Data can easily be entered, modified and deleted from it because this interface provides the rows, this one, and the columns, right? Now we see the elements of this window first. The workbook, right? Workbooks and worksheets. First of all, we are going to see the difference between workbook and worksheets. Workbook is the file that creates by the Microsoft Excel. Understand? That is the workbook name. This overall screen shows the workbook, and workbook contains these worksheets, right? These sheet 1, sheet 2 and sheet 3. You can also call the pages of this workbook, right? This file contains the file named as the workbook, and this workbook contains these pages named worksheets. यानी एक जो आपकी वर्कबुक होती है वो फाइल होती है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल जो आप क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्कबुक, एंड द पेजेस इन दैट वर्कबुक इज कॉल्ड द वर्कशीट. अब हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले जी ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है. क्विक एक्सेस यानी इस टूल बार से ये जो आपको कॉर्नर पे छोटी सी नज़र आ रही है जिसपे ये एक्सेल का साइन बना हुआ है, उसके बाद ये सेव का जो है वो साइन है, यानी इससे आप फाइल सेव कर सकते हैं. ये है जी कैन अनडू और ये रीडू. ठीक है जी, ये 4 फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे आपको गिवन होते हैं, राइट? ये दैट इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार, यानी आप इसको क्विकली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. एंड दिस वन इज़ द फाइल, होम, इंसर्ट. दिस इज़ द मेन्यू बार, राइट? टूल बार्स ऑन द मेन्यू बार्स, फाइल, होम, insert, page layout. These all have many functions. Click on the file button. You all see there save, save as, open, close, info, new, print, right? Save and send.
All these functions are performed by clicking the file menu. And now we see the home. All the options of formatting the text you entered in the Excel worksheet is given there in the home menu, right? Like cut, copy, format printer, उसके जो है टेक्स्ट के स्टाइल, साइज, कलर्स, उनकी अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको होम के टैब में जो है वो मिल जाएंगी. उसके बाद है इंसर्ट. इसमें देखें टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, डिफरेंट तरह की शेप्स, और ये चार्ट्स जो हैं जो कि आपके डाटा को डिपिक्ट करेंगे इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट? और एंड मेनी मोर इन दिस टैब टू, राइट? सो हम ये टैब्स भी बारी बारी देखेंगे. और जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी इसके हम एलिमेंट्स देख रहे थे वर्क बुक के ऊपर. देखें हमने देखा है क्विक एक्सेस टूल बार, और ये टैब्स देखे, मेन्यू बार्स देखे. अब इसमें देखते हैं जी what is this is the cell, right? The workbook is divided into rows and columns. This one rows and this one columns, understand? And the intersection of rows and column, the area that the intersect between rows and column is called the cell. One cell, ये आपको highlighted नज़र आ रहा है. ये black जो है आउटर लाइन से जो है ये हाईलाइटेड होता है. जिस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखें जिस सेल को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो साथ साथ हाईलाइट होता जा रहा है. इट मीन्स कि दैट सेल इज सिलेक्टेड एंड रेडी टू राइट एनी राइटिंग ऑन दिस सेल, अंडरस्टैंड? एंड एवरी सेल हैज़ द यूनिक एड्रेस, राइट? एड्रेस या उसका आप नेम कह लें. कैसे कि उसका कॉलम का नाम और उसकी रो का नाम. दीज आर द कॉलम्स A, B, C, D, E, F and so on. There is a lot of cells in the workbook ranging from A to A से लेके जब Z तक एंड हो जाता है तो फिर A से स्टार्ट हो जाता है, A, B, A, C and so on, X, D, F तक ये कॉलम्स चलते हैं. It means कि it has a lot of capacity to enter the कॉलम्स. एंड इसी तरह से जो है रोज़ जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं. उनके नेम्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. ये बहुत जो है इसकी रेंज काफ़ी सारी होती है. इसमें आप बहुत सारा डाटा एंटर कर सकते हैं. एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस रो एंड दिस कॉलम इज़ कॉल्ड द सेल. अब देखें सेल का एक नाम होता है, एक उसका जो है एड्रेस होता है. हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बी कॉलम है आपके पास, ठीक है जी, ये हमारा सेल सिलेक्टेड है, राइट? अब ये देखें इधर से इसके रो का एड्रेस देखेंगे और कॉलम का एड्रेस देखेंगे. ये रो का एड्रेस क्या है जी, 1. ये हमारा सेल सिलेक्टेड था तो ये 1 करीब करके आपको दिखाती हूँ. ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. 4 वाली रो में हमारा ये सेल सिलेक्टेड है तो ये 4 रो हो गई. और कॉलम कौन सा हुआ, बी, ठीक है? तो इसका एड्रेस क्या बना, इसका एड्रेस बना B4, राइट? इसका एड्रेस क्या बना, B4. इसी तरह से ये C4, ठीक है जी, क्योंकि रो वही है और कॉलम जो है वो चेंज हो गया, कॉलम C हो गया. ये D4, ये E4 एंड सो ऑन. इसी तरह से अगर हम इसको ले लेते हैं तो अभी देखें यहाँ रो जो है वो 7 हो गई और कॉलम जो है वो C है, तो इसका एड्रेस क्या बना, C7. इस तरह से हर एक सेल जो है ये एक अपने एड्रेस से जो है वो पहचाना जाता है, राइट? तो क्यों और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है इसके एड्रेस की? इसलिए पेश आती है कि जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास तो यहाँ जैसे फ़र्ज़ करें आप एक रिज़ल्ट शीट की एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे आप जो है वो एक कॉलम बना लेते हैं रोल नंबर, ठीक है जी. ये आ गया नेम, ये आ गया जी फादर नेम. फॉर एग्जांपल हम एक रिज़ल्ट शीट क्रिएट कर रहे हैं छोटी सी आपको समझाने के लिए कि इसका एड्रेस जो है वो क्यों ज़रूरी होता है. एफ नेम और आ जाते हैं जी टोटल मार्क्स या सब्जेक्ट्स मार्क्स हम ले लेते हैं. फ़र्ज़ करें जी मैथ्स के मार्क्स आ गए, उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स आ गए, फिर जो है फ़िज़िक्स के मार्क्स आ गए, ठीक है? हम 3 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं.
यहाँ पे जो है आ गए टोटल, ठीक हो गया, और यहाँ पे आ गए जी, यहाँ आ गए ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पे आ गए टोटल मार्क्स। ठीक है, अब ये देखें, ये इस कॉलम में ऑब्टेन मार्क्स जो है वो बड़ा हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा था, लेकिन कॉलम का साइज़ छोटा था, इसलिए हमें ऑब्टेन तो नज़र आ रहा है लेकिन मार्क्स नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कर्सर ला के, ये देख रहे हैं ना, ये कॉलम का जो नेम जहाँ पे नज़र आ रहा है जी, उसके ये बिल्कुल एंगल पे लाके ये कर्सर का जब चेंज हो जाता है स्टाइल, उसको क्लिक करें माउस को और ड्रैग करके तो इसको इंक्रीज़ कर लें, इसकी विड्थ को, तो ये आपको ये नज़र आ जाएगा। कभी भी ये गलती मत करें, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा, फ़र्ज़ करें ये साइज़ इसका हम दोबारा जो है वो छोटा करते हैं। अब ये देखें मार्क्स, यहाँ पे लिखने लगे ऑब्टेन मार्क्स। अब ये देखें, ये ऑब्टेन्ड और मार्क्स जो हैं ये एच के एंड तक नज़र आ रहे हैं हमें। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से व्यूअर्स क्या करते हैं कि अब यहाँ इसको भी छोड़ दिया, ये जी कॉलम में लिखना शुरू किया था हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स, एच कॉलम में हमें नज़र आ रहा है तो हमने इसको भी छोड़ दिया, आई में भी नज़र आ रहा है इसको भी छोड़ दिया, यहाँ पे आके हम जो है वो अगला कॉलम जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, दैट इज़ अ मेजर मिस्टेक इन कैलकुलेशंस। ठीक है, क्यों? इसलिए कि इसमें एवरी कॉलम एंड एवरी रो जो है वो एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही होती है, राइट। तो अगर आप उसमें से जी से आपने स्टार्ट किया एक कॉलम और एच और आई को भी अंदर ले आए और जो है जे में फिर आगे जाके आपने नेक्स्ट कॉलम लिखा, तो जब आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करने लगेंगे तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इन कैलकुलेशंस। ठीक है जी, क्योंकि उसने सेल के एड्रेसेस लेने होते हैं, राइट। तो जब आप 3 कॉलम्स को मिला के एक चीज़ एंटर कर रहे होंगे उसमें, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। ठीक है जी, एक तो उसकी फॉर्मेटिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इस तरह से, ये कॉलम्स जो है वो मिस करने से दरमियान से। उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप इसको या तो यूँ साइज़ बड़ा कर लें इसका, ठीक है जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, दोबारा बताती हूँ कि यहाँ पे इस कॉलम में जब आपको का टेक्स्ट ज़्यादा है और कॉलम का साइज़ छोटा है या रो का साइज़ छोटा है, तो रो को और कॉलम को आप इंक्रीज़ कर दें। जैसे यहाँ पे आप कर्सर लेके आए, इसके एज पे कॉलम की जो लाइन है उसके एज पे लाए कर्सर, माउस का जो है लेफ़्ट बटन क्लिक किया और उसको ड्रैग करके यहाँ जितनी आपको उसकी विड्थ चाहिए वहाँ लाके आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है जी, एक तो ये तरीका है कि आप उस कॉलम की विड्थ, अब ये देखें यहाँ पे, ये देखें ऑब्टेन्ड मार्क्स एक ही कॉलम में आने चाहिए थे और वो आ गए, लेकिन हमने क्या किया हुआ था पहले, अगर रॉन्ग तरीके से जो किया उसमें ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बीच में जो है वो मिस हो गए। अब ये ज़ाहिर है कैलकुलेशंस पे इफेक्ट डालेंगे जब हम उसकी रेंज देंगे। रेंज क्या होती है? सेल की रेंज से मुराद है कि अगर आपने सब बच्चों के मार्क्स टोटल करने हैं, जैसे ये मैथ के मार्क्स थे, फ़र्ज़ करें 80 मार्क्स मैथ्स में आए हैं, इंग्लिश में 70 आए हैं, फ़िज़िक्स में जो है वो 95 आए हैं। तो अब क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स में आपने अगर करना होगा, सम करना है, इनको फार्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि अगर बीच में ये मिस होंगे आपके कॉलम्स, तो वो उसको फिर वो अनडिफाइंड कोई वैल्यू ले लेगा उन कॉलम्स की, या ज़ीरो ले लेगा, या किसी भी तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो करप्ट हो सकती है, राइट। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, आपने एक जो वैल्यू है, एक कॉलम है, वो एक ही कॉलम के अंदर उसको मैनेज करना है। उसका रो का साइज़ देखें, यहाँ से रो का साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं, सेम उसी वे में कॉलम का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो एक एंट्री आपने करनी है वो सिर्फ एक ही सेल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, एक सेल से ज़्यादा सेल्स के अंदर ना हो, राइट। तो एक तो ये तरीका था सेल की इंक्रीज़ लेंथ करने का, कॉलम की या रो की। दूसरा क्या तरीका मैं आपको बता रही थी कि इसका हम देखें साइज़ छोटा करते हैं, फिर ये आपको मार्क्स नज़र आना बंद हो गया। अब आप क्या करेंगे, होम के टैब पे जाएंगे, राइट।
होम के टैब पे जाएंगे, अगेन मैं आपको बता दूं, होम के टैब पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ये रैप टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये वाली ऑप्शन, ठीक है जी। ये करीब करके दिखाऊं, ये रैप टेक्स्ट आपका क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी आपने कॉलम जो है वो या जो सेल आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा, ये सिलेक्टेड सेल है ना, आपको ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है उसके बॉर्डर्स पे, इसका मतलब है कि वो इस सेल को रैप कर देगा। रैप मीन कि जहां पे आपका सेल का साइज खत्म हो रहा है, जैसे ये एम के बाद आपको मार्क्स पूरा नजर नहीं आ रहा, रैप टेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो ये बाकी की लाइन जो आपको शो नहीं हो रही वो नीचे ले आएगा। जैसे हम एंटर प्रेस करके नीचे ले आते हैं ना अपने कर्सर को, इसी तरह से ये देखें, ये मैंने रैप अगेन मैं आपको करके दिखाऊं, ये आपको नजर नहीं आ रहा, खाली ऑब्टेन नजर आ रहा है, मार्क्स नजर नहीं आ रहा इसका, तो क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट क्या करेगा कि ये आपको, ये देखें यहाँ एग्जांपल में आपको शो भी कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नीचे, ठीक है जी। तो क्या करेगा ये, जैसे ही मैं क्लिक करने लगी हूँ, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बाकी का टेक्स्ट है जो आपको फिलहाल नजर नहीं आ रहा, वो आपका रो ये खुद ब खुद उसके अकॉर्डिंगली सेट कर देगा। और ये आई एम गोइंग टू क्लिक, ये देखें ये उसने ऑटोमेटिकली क्लिक किया जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट। तो सो देयर आर द टू वेज टू एडजस्ट द टेक्स्ट इन योर सेल। नंबर 1 के आप ये रैप टेक्स्ट से कर लें। नंबर 2 क्या तरीका है कि आप रो या कॉलम का साइज यहाँ से जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। दिस इज द वे टू राइट द टेक्स्ट एंट्री इन योर सेल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट। तो ये तो थे सेल से रिलेटेड डिस्कशंस। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है डिफरेंट, आपको नीचे मैंने बताई है शीट्स थी, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो ये 3 शीट्स होती हैं, यानी 3 वर्क शीट्स होती हैं या 3 स्प्रेड शीट्स होती हैं, यानी 3 पेजेस होते हैं, आप सिंपल वे में यूं भी कह सकते हैं। आप इसको इंक्रीज करना चाहें तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे ये देखें इंसर्ट वर्कशीट, इसको क्लिक करेंगे ये शीट 4 बन जाएगी, ये न्यू शीट है, फिर इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप न्यू शीट इंक्रीज कर सकते हैं और फाइल में जाके न्यू से भी आप कर सकते हैं। ये देखें ये वर्क बुक आप यहाँ से ब्लैंक यानी नई फाइल आप बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इनके शीट्स के नाम भी आप रीनेम भी कर सकते हैं। कैसे, इसको डबल क्लिक किया और ये पहली शीट का नाम रख दिया रिजल्ट, राइट। ये दूसरी शीट, उसको डबल क्लिक किया आपने और इसका नाम रख दिया अटेंडेंस, ठीक है जी, एंड सो ऑन। इस तरह से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब आगे इसके मज़ीद फंक्शन सीखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई आपको वीडियो अपलोड हो इस चैनल के ऊपर तो आपको जो है फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आ जाए। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।